new chapter today, which is a neural control and coordination. Okay, so neural control and coordination में आपके क्या आएगा? Obviously your nervous system, anything related to your brain and spinal cord would come under your nervous system, right? Okay, so obviously we are talking about human physiology, so we will obviously be talking about the human nervous system. So what is the human nervous system? What does it actually comprise of? So the our nervous system, that is our human nervous system, it is comprised of two types of systems. One is your central nervous system and the other is your peripheral nervous system. Okay, the central nervous system and the peripheral nervous system. What does central nervous system include? Can you tell me? What does the CNS include? Only brain? So the CNS will include your brain and spinal cord. Okay. So PNS में आपका क्या आएगा? What will PNS include? बोलो. Peripheral nervous system में क्या आएगा? See the nerves arising from CNS. All the nerves, जितनी भी nerves हैं जो PNS से arise करती हैं, they all, sorry, जितनी भी nerves हैं which arise from the central nervous system, which is your brain and spinal cord, वो सभी के सभी किस में आएंगे? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी, जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी वो कौन सी नर्व्स होंगी? उनको हम बोलते हैं cranial nerves. Okay, and the ones and the nerves which arise from your spinal cord is your spinal nerves. ठीक है. So the nerves arising from brain are the cranial nerves and the ones arising from the spinal cord, they are your spinal nerves. ठीक है. ये तो हो गई बेसिक चीज. अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में, अच्छा, when we are talking about nerves, so एक और टर्म आता है which is your nerve fibers. ठीक है. और ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? नर्व के साथ they are associated, so these nerve fibers would be present in your PNS. So the nerve fibers of PNS वो होते हैं दो टाइप्स के. दो टाइप्स के नर्व फाइबर्स होते हैं. वन इज afferent and the other is efferent. Afferent nerve fibers and the efferent nerve fibers. कभी सुना है? Have you ever heard of these terms? Afferent fibers and the efferent fibers. क्या होता है बता सकते हो मुझे? बच्चे ये तो हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना अभी. तो वी आर, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नर्व इम्पल्स. राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड. क्लियर? So I'm asking the difference between the afferent and the efferent nerve fibers. वो बच्चे वो जो तुम बोल रही हो वो है एफरेंट. आपके जो ग्लोमेरुलस में आता है ना वो एफरेंट आर्टीरियोल एंड द इफरेंट आर्टीरियोल, वो आर्टरी के बारे में बात कर रही हो तुम. ठीक है. एंड मैं जो यहाँ पे पूछ रही हूँ, यहाँ मैं पूछ रही हूँ दी एफरेंट नर्व फाइबर एंड दी इफरेंट नर्व फाइबर. सो हियर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन. यस. हाँ वैसा ही कुछ होता है. बताओ सही जा रहे हो? बोलो बोलो आगे बोलो. अच्छा, एफरेंट मोटर न्यूरॉन्स है तो इफरेंट क्या है?
सी वेरी गुड. सो एफरेंट एंड इफरेंट. एफरेंट का मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, मतलब चलो जानबूझ के तो नो वन विल टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. सपोज इफ एक्सीडेंटली यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस हॉट ऑब्जेक्ट को आपने हाथ लगाया तो क्या होता है? यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, राइट? सो हाउ डज दैट एक्चुअली हैपन? मतलब दैट touching the object and withdrawing your hand, so that takes or that occurs within fraction of seconds. ठीक है, बहुत ही very little time is required for that. So basically हो क्या रहा है इसके अंदर? सबसे पहले so your brain, that is your central nervous system, is acting so quick in that. ठीक है, अब वो act कैसे कर रहा है? So with the moment when you're touching that hot object, ठीक है, अब आपकी ब्रेन को कैसे सिग्नल मिल रहा है कि ये जो आपने जिस ऑब्जेक्ट को टच किया है दैट इज एक्चुअली हॉट. ठीक है, ब्रेन तो आपका टॉप पे प्रेजेंट है एंड आप यू आर टचिंग इट विद योर हैंड, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, एंड तो ब्रेन के पास कोई मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए. देयर शुड बी समथिंग जो कि ब्रेन को ये मैसेज पास कर सके कि बॉडी ने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है. सो यू इमीडिएटली पास अ मैसेज कि दैट द बॉडी हैज टू विड्रॉ द हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये जो स्टिमुलस है, एंड यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? द स्टिमुलस इज एक्चुअली योर हॉटनेस. ठीक है, कि द ऑब्जेक्ट इज वेरी मच हॉट एंड दैट हॉटनेस दैट इज एक्टिंग एज द स्टिमुलस. वो स्टिमुलस को कौन लेके जाएगा ब्रेन तक? दैट स्टिमुलस वुड बी एक्चुअली कैरिड बाय योर एफरेंट नर्व फाइबर्स. ठीक है, और एफरेंट नर्व फाइबर्स को आप और भी क्या बोल सकते हो कि वो सेंसरी इंपल्सेस ट्रांसफर कर रहे हैं. सेंसरी इंपल्सेस मतलब विच यू कैन सेंस. आपको पता लग रहा है कि भाई दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट, देयरफॉर यू आर विड्रॉइंग द हैंड. बात समझ में आ रही है? इफ इट वुड हैव बीन ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर और इफ इट वुड हैव बीन एट द रूम टेम्परेचर, यू वुडंट विड्रॉ द हैंड. वेरी सिंपल. ठीक है, तो कि अब ये जो स्टिमुलस है दैट इज दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट, दैट ऑब्जेक्ट और दैट स्टिमुलस इज एक्चुअली passed on to the brain, by which nerve fibers it is passed on by your afferent nerve fibers. बात समझ में आ गई? अच्छा, अब afferent nerve fibers ने क्या किया? afferent nerve fibers ने जाके ब्रेन को ये स्टिमुलस दिया, ये मैसेज दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी नीड्स टू विड्रॉ द हैंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ब्रेन ने इमीडिएटली उस मैसेज को इंटरप्रेट किया. ठीक है, उस मैसेज को रीड किया, इंटरप्रेट किया एंड उस मैसेज को वापस भेजा कि यू एक सिग्नल के फॉर्म में भेजा कि दैट यू विड्रॉ योर हैंड. ठीक है, अब जो मैसेज लेके आया है वो तो मैसेज लेके जाएगा नहीं वापस. ठीक है, तो जो ब्रेन से मैसेज लेके जाएगा टू द हैंड कि दैट यू हैव टू विड्रॉ योर हैंड, कि वो कौन लेके जाएगा? उसके लिए अलग नर्व फाइबर्स हैं एंड दोज नर्व फाइबर्स आर योर इफरेंट नर्व फाइबर्स, और यू कैन आल्सो कॉल देम एज द मोटर न्यूरॉन्स. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड द इफरेंट नर्व फाइबर्स? So afferent nerve fibers में you can write down, they transmit the sensory impulses. So they transmit the sensory impulses. They transmit the sensory impulses from the tissues or organs to CNS. ठीक है, CNS के पास में मैसेज लेके जा रहे हैं and form sensory or the afferent pathway and form sensory or the afferent pathway. ठीक है, so these are your afferent nerve fibers. Efferent nerve fibers क्या होगा? They transmit motor impulses. So they transmit motor impulses from CNS
to concerned tissue or the organ. पहले मुझे बताओ, is the difference clear between the two afferent nerve fibers and the efferent nerve fibers? बोलो, is it clear or not? Okay. So ये बात हम basically we are talking about the peripheral nervous system. ठीक है, peripheral nervous system में the nerves are included and nerves में भी nerve fibers are there. ठीक है. अच्छा, इसी के बाद में now we classify the peripheral nervous system further. How do we further classify the PNS? PNS को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. One is your somatic nervous system. Somatic nervous system, and the other is your autonomic nervous system. ठीक है, एक होता है somatic nervous system and एक होता है autonomic nervous system. Somatic nervous system कौन सा होगा? It includes the nerves supplying the skeletal muscles. So it includes the nerves supplying the skeletal muscles. ठीक है, तो जो skeletal muscles को nerves supply करेंगी, they are included in the somatic nervous system. Therefore, the somatic nervous system controls the body movements. Okay, so it controls the body movements. अच्छा, autonomic nervous system में क्या होगा? It controls and coordinates such organs which are under involuntary control. ठीक है, it controls the organs which are under involuntary control. ठीक है, तो इसमें से वॉलंटरी कौन सा हो गया? वॉलंटरी हो गया जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट बिकम्स अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज दैट इज ये किस में इंक्लूड हो रहा है? दिस इज इन्वॉल्विंग द स्केलेटल मसल्स एंड वी कैन वॉलंटरीली मूव द स्केलेटल मसल्स. ठीक है, एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा आपका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वुड इंक्लूड योर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, मतलब जिसकी मूवमेंट या जिसका कोऑर्डिनेशन दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब बाकी सब बाद में हम डिटेल में करेंगे. इससे पहले नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक थिंग विच इज योर न्यूरॉन. ठीक है, मैं न्यूरॉन को डिटेल में नहीं कराने वाली हूं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, because you have already studied the neuron in detail in your lower classes. ठीक है, तो now who's going to tell me the structure of neuron? बोलो. हाँ, तो पहले जिया को बोलने दो. अच्छा, और अच्छा, और क्या होता है? और इसने ये जो पॉइंट्स बता दिए उसके अलावा कुछ बताओ. अच्छा, इन सब का रोल क्या होता है? अच्छा, फिर सेल बॉडी क्या करेगा?
क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता क्या बोलते हैं, बताओ। दानिश, दानिश, इज ही देयर और नॉट? बताओ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओ। आता है या नहीं आता है? हाँ दानिश, आता है या नहीं आता है? अच्छा, इसमें ये कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये जो एक ग्रैन्यूल्स होते हैं यहाँ पे, known as your Needles granules. पता है what are these Needles granules? ये बेसिकली Needles granules आपके क्या होते हैं? They are irregular masses of your rough endoplasmic reticulum. ठीक है, मतलब बेसिकली इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, या these are your ribosomes which help in the protein synthesis. ठीक है, these are your Needles granules. अच्छा, और क्या होता है? साइटोन कौन सा हो गया आपके इसमें? ये पूरा दिस इज योर साइटोन और द सेल बॉडी, दीज आर योर डेंड्राइट्स। ठीक है, ये सब आपको पता है। और क्या होता है इसमें? दीज, व्हाट इज दिस? दीज आर योर नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। और क्या होता है? यहाँ पे होगा आपका साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? अच्छा, गैप होता है, तो गैप का क्या पर्पस होता है? एक एक करके बोलो, एक साथ मत बोलो। हेट, तुम बोलो। हाँ ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मतलब यू हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल द पॉइंट्स कि सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी क्या करेगी? मैसेज को कैरी अवे करेगी, और ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को कैरी करके कहाँ पे देंगे? मतलब सेल बॉडी को देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आर यू सीइंग? दीज आर योर सर्टेन स्वेलिंग्स और द स्ट्रक्चर। ये इनको हम टर्मिनल आर्बोराइजेशन बोल सकते हैं, या फिर सिंपल टर्मिनल वेसिकल्स। इसमें इनके अंदर क्या फील्ड होते हैं? इनके अंदर आपके होते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स। ठीक है, दीज कंसिस्ट ऑफ योर न्यूरोट्रांसमिटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या होते हैं बेसिकली? जैसे सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, तो यहाँ पे दिस इज अ साइनैप्स, राइट? तो इस साइनैप्स के जस्ट आगे देयर इज अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो जब इस वाले न्यूरॉन से जब ये न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होंगे, दोज न्यूरोट्रांसमिटर्स वुड बी रिलीज इन द साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स पे रिलीज होंगे, एंड व्हेन द न्यूरोट्रांसमिटर्स दे गेट रिलीज इन द साइनैप्स, so these neurotransmitters they would go and bind on to the other neuron। ठीक है, जिसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, and this is how the role of neurotransmitters, मतलब this is the role of neurotransmitters यहाँ पे। अच्छा, what is the purpose of nodes of Ranvier? nodes of Ranvier वो क्या करते हैं? बोलो। तो वो तो एक्सॉन भी कर रहा है ना, नोड्स ऑफ Ranvier क्या कर रहे हैं? क्या बनाई थी? हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है, बट मतलब मेरा पूछने का पॉइंट है कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर क्या एडिशनल रोल प्ले कर रहे हैं उसमें? पहले तो मुझे बताओ कि इज इट अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर और इट इज अ अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर? कौन सा है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डू यू नो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स?
हाँ चलो ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर अनमाइलिनेटेड होगा, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट माय पर्पस इज, कि मतलब इसका क्या पर्पस है, नोड्स ऑफ रैनवियर है तो वहां पे अनमाइलिनेटेड क्यों रखा है, उसके पीछे का क्या रीजन है? एक सिंपल पूरा ही हो जाता, माइलिनेटेड पे क्या हो जाता? सोचो सोचो। कम नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो कोई भी जो, क्या बोल रहे हो? एग्जैक्टली। सो दिस इज अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, यहाँ पे ये इसमें प्रेजेंट है, ये आपका माइलिन शीट, ठीक है। अभी नोड्स ऑफ रैनवियर क्या करेंगे, दे हेल्प इन योर सॉल्टेटरी कंडक्शन, वो बाद में भी पढ़ेंगे, सॉल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द सॉल्टेटरी कंडक्शन, कि कोई भी जो नर्व इम्पल्स आया है वो दैट इज जंपिंग। देखो एक ये नर्व फाइबर है विच इज द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक यहाँ पे इम्पल्स आया, अब ये जो माइलिनेटेड रीजन है एक्सॉन का, वहां पे तो इम्पल्स के नॉट ट्रेवल। अभी खुद तुमने ही बोला कि जो नोड्स ऑफ रैनवियर है दे आर अनमाइलिनेटेड, सो व्हेनेवर एन इम्पल्स रीचेस हियर, तो अब ये अनमाइलिनेटेड रीजन है, तो इसके बाद इम्पल्स को डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, इस नोड ऑफ रैनवियर पे, ठीक है। फिर इस नोड ऑफ रैनवियर के बाद इसको जहां पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पे अनदर नोड ऑफ रैनवियर एंड देन अगेन हियर, ठीक है। सो एक तो ये सिनेरियो है, ठीक है, या फिर एक सिनेरियो आता है कि जिसमें जो, suppose if this is the axon and this is entirely, this is माइलिनेट, सॉरी हाँ ये कंप्लीटली माइलिनेटेड है, तो अब मुझे बताओ दोनों में से स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फास्टर किस में होगा, बताओ। वो क्यों होगा? एग्जैक्टली वो नॉन माइलिनेटेड है, प्लस एट द सेम टाइम इसके अंदर द इम्पल्स सीम्स टू बी जंपिंग, ठीक है। जंपिंग, जंपिंग कैसे, यहाँ पे एक नोड ऑफ रैनवियर है, यहाँ पे दिस इज द अदर नोड ऑफ रैनवियर, देन दिस, सो इट इज जंपिंग, द इम्पल्स इज जंपिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द अदर, ठीक है। एंड जब वो इम्पल्स ऑब्वियसली जंप कर रहा है फास्टली, सो द इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन फास्टर किस में होगा, in the myelinated nerve fibers, ठीक है। So this way of transmission of nerve impulse from one node of Ranvier to the other, that is known as saltatory conduction. Clear everyone? Any doubt? कोई डाउट नहीं है? ओके, सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो कर लोगे ना, बेसिक सा ही है, आई थिंक, आई होप यू कैन डू दैट, ठीक है। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे विद आवर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस बार तो यू गाइज आर वेरी लकी, जो भी मतलब नॉट यू, द वंस हु विल बी गिविंग द नीट एंट्रेंस एग्जाम दिस टाइम, क्योंकि उन लोगों का था जो नीट का पेपर बनेगा, कल ही जो अनाउंस हुआ है उसमें तो इट इज मेंशन कि जो नीट का एग्जाम है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस ओनली, मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में जो हाफ सिलेबस आ रहा है वो और नीट के एंट्रेंस में फुल सिलेबस आएगा। अभी कल ही अनाउंसमेंट हुई है कि जो नीट का एंट्रेंस होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस ओनली, जो आपका 30% सिलेबस में रिडक्शन है उसी के बेसिस पे द एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम वुड बी कंडक्टेड। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल हुआ है, 11th में रिडक्शन हुआ है, 12th में भी हुआ है, दोनों में रिडक्शन हुआ है। तुम लोग के तो पूरे पूरे चैप्टर्स हटा दिए, 12th में भी चैप्टर्स हटा दिए पूरे के पूरे।
पहले तो इट वाज डाइसी की मतलब बोर्ड्स में तो यू हैव टू यू कैन स्टडी ओनली द रिड्यूस्ड पोर्शन, बट कल आई वाज वाचिंग द न्यूज तो उसमें इट वाज शोइंग के का जो नीट का एंट्रेंस होगा दैट वुड बी बेस्ड अपॉन योर द रिड्यूस्ड सिलेबस होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बोर्ड्स में हाफ सिलेबस आया है एंड आपके एंट्रेंस में सारा सिलेबस आएगा। So the students giving the exam this time would be kind of lucky because there's a reduction in syllabus this time. आपके फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री और में भी रिडक्शन हुआ है क्या सिलेबस का? अच्छा, चलो दैट्स गुड देन। बोलो क्या बोल रहे थे? आई कैन सेंड यू द डिलीटेड पोर्शन। चलो मैं वो भी सेंड कर दूंगी, पर मेरे पास अभी डिलीटेड पोर्शन तो है, मतलब जो पोर्शन हट गया है। जैसे आपका डाइजेशन वाला चैप्टर वो तो कम्प्लीटली हट गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, एंड आपका जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू डू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आपका मसल वाला पोर्शन है सिर्फ वो करना है। यू डू नॉट हैव टू डू योर स्केलेटन नहीं करना है। ये सब जो एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन किया है ये सब कुछ नहीं करना है। ऑल्सो ये सब जॉइंट्स वगैरह और ये डिसऑर्डर्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आपका और क्या करना है बाकी तो इस वाली यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब कुछ करना है। आपका पूरा वो चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर, मतलब इतना मतलब ठीक है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है वो चैप्टर, वो पूरे का पूरा चैप्टर हटा दिया है। एंड आपका एनिमल किंगडम तो आई डोंट नो कि इसमें कितना कट हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट आपका वो हटा दिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मतलब शायद सिर्फ 2 ही फैमिलीज करनी है, उसमें भी काफी कुछ कम कर दिया है। एंड ओवरऑल बहुत बहुत ज्यादा आपका मतलब ये 30% से तो मेरे को ज्यादा ही सिलेबस में रिडक्शन लगता है। तो हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल्स नाउ, मतलब जो जिन्होंने रेगुलर स्कूल का रखा है स्कूल्स तब तो स्टार्ट हो गए हैं ना? अच्छा 11th वाले नहीं आ रहे, 12th की हुई है, ओके। तो प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हें क्या बोला है, कब कराएंगे, बाद में? तो वो तो शायद कराएंगे बाद में बुला के आई गेस, मतलब जैसे कि एक बार आपका भी फरवरी एंड में होंगे ना आपके फाइनल एग्जाम्स तो 11th के। तो किसके कब है, तुम लोग के फेब में नहीं है? अरे एक एक करके बोलो। एक 1 फेब से ही चालू हो जाएगी। 8 फेब ओके 8 फेब। एंड बाकी लोग की सभी? अच्छा वैसे भी ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तब तक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सो यू कैन डू दैट। चलो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें जो टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बट अपना एंट्रेंस वगैरह के लिए पढ़ना अभी से स्टार्ट करो। इफ यू आर प्लानिंग कि इसको 12th क्लास में एक साथ में कर लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। इफ यू आर एक्चुअली एमिंग फॉर द एंट्रेंस, स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। अभी करोगे तब जाके 12th में योर कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर कंप्लीटली, एंड 11th इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। 12th मैं अभी बोल रही हूँ, 12th में आप बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है 12th में, दैट ओनली कम्स इन द जेनेटिक्स। बाकी सब लोग बच्चे सब कर लेते हैं। फर्स्टली तो 12th में सिलेबस 11th के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। 12th का सिलेबस कम होता है एंड कंपैरेटिवली इट इज इजी। ओनली जेनेटिक्स का पोर्शन होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील होता है, ओनली जेनेटिक्स पोर्शन में। बाकी का पोर्शन सब मैनेज हो जाता है, बाकी कुछ टफ नहीं होता है, बाकी रेस्ट इज वेरी इजी। जो बेस बनाने वाला आपका पोर्शन होता है दैट इज ओनली योर 11th, ठीक है। तो आपका 11th स्ट्रॉन्ग होना एंड 11th का बेस स्ट्रॉन्ग होना, दैट हैज टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, मतलब 11th स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्लियर द एंट्रेंस, ठीक है। लोग तो सिंपल से बायो को स्ट्रॉन्ग करके एंड
वन सब्जेक्ट ईदर ऑफ योर फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो करके भी लोग अपना एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं. सो द पॉइंट इज बेसिकली कि यू हैव टू फिगर आउट कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस में है. What is your strong point? Is it your physics or is it your chemistry or is it your bio? जनरली बायो रखोगे तो बहुत हेल्प करेगा, बाकी केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे तो भी इट विल वर्क फॉर यू. बट माई एंटायर पॉइंट ऑफ टेलिंग इज कि इफ यू आर एक्चुअली एंड इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज देन प्लीज स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ. अगर ये सोच रहे हो 12th में आने के बाद करूंगा करूंगी तो दैट वोंट हेल्प. ठीक है, फिर उसके बाद में तो ड्रॉप ईयर का ही सोच के चलना, अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी मच डिफिकल्ट. ओके, सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद द मेनिंजेस. ठीक है, मेनिंजेस मींस द लेयर्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन के अंदर देर आर 3 मेम्ब्रेन्स. जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें देर आर 3 membranes. And what is the purpose of these 3 membranes? They help in the purpose of protection. ठीक है, they help in the purpose of protection. And what are those 3 layers? 3 layers, those are the pia matter, arachnoid and the dura matter. ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसे है? दिस इज द इनसाइड टू द आउटसाइड. ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट. अच्छा, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा दिखेगा? सपोज if this is the cranium and इसके नीचे आपका सबसे पहले आएगा ड्यूरा मैटर, then there is going to be the arachnoid, see outermost layer, this is your cranium. ठीक है, below the cranium what is there? This is your ड्यूरा मैटर. ठीक है, दिस इज द ड्यूरा मैटर. अच्छा, ड्यूरा मैटर के नीचे ये जो स्पेस है, स्पेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज subdural space. We call it as subdural space. And below subdural space, what is this layer? This is the arachnoid layer. ठीक है, this is the arachnoid layer. And below the arachnoid, what is there? अच्छा, इसके बीच में ना यहाँ पे there is some space. This is known as subarachnoid space. So this is your subarachnoid space. And at the last, what is there? This is your pia mater. ठीक है, so these are the layers from the inside to the outside. This is the pia mater, arachnoid and the dura mater. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे this is filled with gray matter and this is your white matter. Can you tell me the difference between white matter and gray matter? बोलो. बोलो बोलो. तो याद करो ना. बोलो.
हाँ, तो क्या होता है, मतलब कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर को? अच्छा, और क्या होता है? और क्या होता है बताओ? See, gray matter